Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. I'm Shahzaid Ahmad and today I'm taking 12th class with BS English 5th semester in the course of 14th to 18th century poetry. So in previous lectures we have discussed different poems of John Donne and we have discussed that how his writing works and how to understand John Donne in a very good manner, and after that we have discussed about about different features of metaphysical poetry which were important to analyze these poems. And so far our focus was on two poems of John Donne, and we have just discussed the summary and the main content of these poems. So this is our last poem about John Donne love poetry, and this is our third poem. First we have studied about the flea, and after that we discussed a valediction forbidding mourning, and now today we will discuss about a valediction of weeping. And these three poems are very important for the course or in 18 to 14 to 18th century poetry, as well as they are the greatest poem of John Donne, written in the era of his love poems. So, in this lecture, I will only focus on the content and the main theme of this poem, and we will just analyze the summary of this poem. And in upcoming lectures, we will discuss these three poems one by one in according to its form. That what is the meter of different poems and how these meters are used, and what are the uh, 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 what are the syllables, and we will discuss all these things. So we will start this topic, a valediction of for weeping, a valediction of weeping. So as I have mentioned in different classes, that first of all we have to analyze the title of any topic, the title of any poem. So here we have two words, a valediction, and the other word is weeping. So we have discussed about valediction, that what is valediction. So valediction is a situation of farewell. Valediction is a situation of a farewell, and weeping is related to what, that is रोना, मीन्स किसी की जो है वो, कोई जो है उसके फेयरवेल पे जो है आप रो रहे हैं. As we will connect this poem with our second poem, which was a valediction forbidding mourning. So in both poems the situation are same, कि एक जो है बंदा जो है या जॉन डन जो है या हमारा नरेटर जो है वो जा रहा है, वो ये जगह छोड़ के जा रहा है, और उसकी जो है वो बीवी जो है या लवर जो है उसको वो समझा रहा है कि आप जो है ये दुख का इजहार जब कर रही हो या आप रो रही हो, तो आपको जो है वो रोना नहीं चाहिए. सो टू as we have discussed that metaphysical poetry is about that how you put an abstract idea with the help of concrete examples. So here you will see that how John Donne has put these abstract idea, or the main abstract idea of the farewell, in different concrete examples, and how he is comparing these two, their two different things about the farewell, the love of his wife or the love of his lover. So we will discuss it one by one. So before starting the lines of poem, I will also add that कि ये जो स्टोरी ये सही है कि जॉन डन जो थे वो सिर्फ और सिर्फ पोर्ट नहीं थे, वो जो है डिफरेंट मकसद के लिए जो है वो मतलब से उस पे जो है सेलिंग भी किया करते थे, मतलब कश्तियों में जो है वो जाना पड़ता था उनको, डिफरेंट मुल्कों जो है वो जाना पड़ता था उनको. सो अभी जो है एक ऐसी सिचुएशन है, पहले मैं सिचुएशन आप लोगों को बता दूं कि जॉन डन जो है या ये नरेटर जो है वो इस इंग्लैंड को जो है वो छोड़ के जा रहे हैं, मींस अपनी बीवी को जो है वो छोड़ के जा रहे हैं, और उनकी बीवी जो है वो रो रही है. तो अभी सिचुएशन क्या है कि जॉन डन जो है उन्होंने सेलिंग करनी है, तो जब वो सेल करेंगे मींस जो है कश्ती में जाएंगे, तो उसमें समंदर को उनको क्रॉस करना पड़ेगा, डिफरेंट हवाएं होंगी. तो कैसे जो है इस सिचुएशन को, के मतलब ये जाने से पहले जो उसके कोई ख्यालात होते हैं, उसको जॉन डन कैसे जो है अपनी जर्नी के साथ कनेक्ट करता है, कैसे अपनी लवर को समझाने की कोशिश करता है. वी विल डिस्कस ऑल दीज इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस वेरी पोम. सो वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग दिस पोम. That first, these are 9 lines. The first stanza consists of 9 lines, and in our next lecture we will discuss that what is the stanza which is what we call the stanza which is uh, comprised of 9 lines. So we will discuss it in next lecture. So let me pour forth my tears before thy face, while I stay here, for the face coins them, and thy stamp they bear, and by this mentage they are something worth.
for thus they be pregnant of thee. Fruits of much grief they are, emblems of more. When a tear falls, that thou falls which it bore, so you thou and I are nothing then, when on the diverse shore. So in these 9 lines, first of all, John Donne is trying to elaborate his love, that how much he loves his wife. सो क्या कहते हैं कि पहले लाइन में कि लेट मी पोर फोर्थ माई टीयर्स बिफोर दाई फेस, मुझे जो है अपने आंसू गिराने दो, मुझे जो है अपने आंसू बहाने दो, माई टीयर्स बिफोर दाई फेस, तुम्हारे तुम्हारी जो है वो तुम्हारे फेस के सामने, तुम्हारे सामने जो है मुझे अपने आंसू बहाने दो. कौन कह रहा है? जॉन डन कह रहा है. वाइल आई स्टे हेयर, जब तक जो है मैं यहाँ पे हूँ, तुम जो हो मुझे रोने दो, मेरी आंसुओं को रोकने की कोशिश ना करो, बल्कि मुझे इन आंसुओं को बहाने दो. फॉर दाई फेस कॉइन्स देम, दाई जो है वो यूअर को कहते हैं, जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ. तो यहाँ पे जो है अगर हम लिख दें इसके साथ के फॉर दाई फेस के मतलब फॉर यूअर फेस कॉइन्स देम, कि इन आंसुओं में, मेरी आंसुओं में जो है क्या है कि तुम्हारा फेस जो है वो बना हुआ है. मींस फॉर एग्जांपल ये जो है एक आंसू है, तो उसमें इसकी महबूब का जो है वो फेस बना हुआ है. सो क्या कहता है कि फॉर दाई फेस कॉइन्स देम एंड दाई स्टैम्प दे बियर, और इन आंसुओं ने तुम्हारा स्टैम्प जो है वो बियर किया है. मींस इन आंसुओं में तुम जो हो वो बसती हो, तुम इन आंसुओं के अंदर हो. जिस तरह जो है पुराने जमाने में आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह की कॉइन होती थी, इस तरह की कॉइन होती थी, और उसमें क्या होता था कि एक किंग की जो है वो तस्वीर बने होती थी, और वो कॉइन जो है या ब्रोंज की बनी होती थी, पीतल की बनी होती थी, जिसका कोई जो है वो खास सोने या चांदी की तरह कोई उसका रेट नहीं होता था. लेकिन जब ये किंग की तस्वीर जो है उस पे लग जाती थी, तो इसकी जो है वो कीमत बढ़ जाती थी. तो इस तरह जो है जॉन डन कैसे जो है इस चीज को कंपेयर कर रहा है अपनी वाइफ के साथ, इसको जो है हम आगे पोम में देखते हैं. दोबारा स्टार्ट करते हैं कि लेट मी पोर फोर्थ माई टीयर्स बिफोर दाई फेस वाइल आई स्टे हेयर, मुझे आंसू बहाने दो जब तक मैं तुम्हारे सामने हूँ. फॉर दाई फेस कॉइन्स देम एंड दाई स्टैम्प दे बियर, एंड बाय दिस मेंटाज दे आर समथिंग वर्थ. कह रहे हैं कि मेरे आंसुओं में जो है तुम्हारी तस्वीर है, और इसी वजह से, इसी स्टैम्प की वजह से, इसी मेंटाज की वजह से जो है मेरे ये आंसू, जो कि नॉर्मल आंसू जो हैं, अगर हम दो नॉर्मल आंसू को जो है, ये आंसू हो गया और ये एक पीतल का जो है कॉइन हो गया, ये दोनों जो है क्या है? ये नथिंग है. लेकिन जब मेरे आंसुओं में जो है तुम्हारी तस्वीर आ जाती है, तो ये ऐसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जैसे कि एक पीतल के, एक ब्रोंज के कॉइन में जो है एक बादशाह की तस्वीर आ जाती है. मींस जो बादशाह की तस्वीर आने पे एक कॉइन की जो है वो कीमत बढ़ती है, इस तरह मेरी आंसू जो है वो नील है, उसकी कोई कीमत नहीं है. लेकिन जब तुम्हारी शक्ल जो है इसमें आ जाती है, मेरे आंसू जो है क्यों निकल रहे हैं? तुम्हारी वजह से निकल रहे हैं, तुम्हारी शक्ल मेरे आंसुओं में है. तो ये आंसू जो है क्या है? ये अभी इस पीतल के, इस ब्रोंज के कॉइन की तरह जो है इसके इक्वल हो गए. तुम्हारी आंसुओं की वजह से क्या हो गए हैं? ये कीमती हो गए हैं. एंड बाय दिस मेंटाज दे आर समथिंग वर्थ, ये कीमती हो गए हैं. फॉर दस दे बी प्रेग्नेंट ऑफ दी, प्रेग्नेंट जो है वो हम अक्सर जो है वो लेडीज के लिए यूज करते हैं जिनका बच्चा पैदा होने वाला हो. सही है. सो टू बी फ्रैंक, आप लोगों को समझाने के लिए जो है ये चीज कर रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल जो है लेडीज जो है उनका मतलब बेली जो है उनकी निकल आती है. सही है, इस तरह हो जाती है. तो कह रहे हैं कि मेरे आंसू जो है वो भी जो है आपके पिक्चर उसमें ऐसी समाई हुई है जैसे कि मेरे आंसू जो है वो प्रेग्नेंट हो गए हैं. मींस मेरे आंसुओं में जो है आपकी पिक्चर आ गई है. फ्रूट्स ऑफ मच ग्रीफ दे आर, एम्बलेम्स ऑफ मोर. कह रहे हैं कि ये जो है फ्रूट्स ऑफ मच ग्रीफ का मतलब ये नहीं है कि ये एक्चुअल वाले फ्रूट की बात कर रहे हैं. फ्रूट मींस इन अ रिजल्ट. सही है, कि ये जो है इन अ रिजल्ट जो है मेरे आंसू जो है वो क्यों निकल रहे हैं? बिकॉज जो हम दोनों ने आपस में वक्त गुजारा है, जो हम पे तकलीफें आई हैं, जो हमने अच्छा वक्त गुजारा है, तो अभी जो है तुम्हें छोड़ के जाना जो है मेरे लिए बहुत ज्यादा तकलीफ दे है. सो ये मेरे आंसू क्या है? फ्रूट्स ऑफ मच ग्रीफ दे आर. मेरे आंसू जो है इसका नतीजा है कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ. मींस मेरे दुख का जो है वो मैं इजहार नहीं कर सकता कि कितना दुख जो है वो मुझे हो रहा है. When a tear falls, जब मेरा एक आंसू जो है वो गिरता है,
नाउ जस्ट इमेजिन ही इज डिपिक्टिंग समथिंग विच इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। अगर हम यहाँ पे देखें ये क्या कह रहा है, अ इसने यूज किया है। व्हेन अ टीयर फॉल्स मीन्स मेरा एक टीयर, मीन्स जितने भी मेरे ज्यादा टीयर्स हैं उतनी जो है तुम्हारी पिक्चरें उसमें मतलब प्रिंटेड है, इम्प्रिंटेड है, और जितने मैं आंसू बहाता हूँ उतने ही मेरे आंसू जो है वो कीमती है। मीन्स मेरा एक आंसू नहीं बल्कि मेरे सारे के सारे आंसू जो है वो कीमती है। और अगर इनमें से एक भी गिर जाए, व्हेन अ टीयर फॉल्स दैट दो फॉल्स विच इट बोर, तो उसके साथ दो का क्या मतलब है, यू, ये ओल्ड इंग्लिश है, सही है। तो जब मेरा एक टीयर गिरता है तो उसके साथ तुम भी जो हो वो गिर जाती हो। मीन्स जो हो कि तुम्हारी जो चंक्स है मेरे दिल में, जो तुम्हारी चंक्स है, तुम्हारी मोहब्बत है, वो मेरे आंसुओं के थ्रू जो है बाहर आ रही है और वो जो है वो नीचे गिर रही है। और जब तक मेरे आंसुओं में तुम्हारी तस्वीर है, जब तक मेरे आंसू प्रेग्नेंट है, तब तक ये बहुत ज्यादा वर्थ रखते हैं। लेकिन जब ये गिर जाते हैं तो क्या होता है कि सो यू एंड आई आर नथिंग देन। लेकिन जब ये व्हेन ऑन अ डाइवर्स शोर, ये जब आंसू गिर जाते हैं और नीचे जो है, अभी जो है हम यहाँ पे इमेजिन करेंगे, जॉन डन नहीं कर रहा है लेकिन वी हैव टू इमेजिन द सिचुएशन, कि जब आंसू गिरता है मींस जो है वो आंसू खुल जाता है, तो मींस उसकी पिक्चर जो है वो भी खुल जाती है जब जमीन पे गिरता है या किसी चीज के साथ टकराता है। तो इसको जो है हम दो तरीके से जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। या इस लाइन को जो है हम डायरेक्ट इस लाइन से कंपेयर करें, सही है, या हम इसको जो है इन लास्ट से कंपेयर करें, तो दोनों को हम कर सकते हैं। कह रहे हैं कि अगर आपके आंसू जो है वो जो मेरे आंसू हैं जब वो गिरते हैं और नीचे लगते हैं तो आपके जो पिक्चर होती है वो खराब हो जाती है। इसके बाद जो है सो यू एंड आई आर नथिंग देन, तो तब हम कुछ भी नहीं होते। मीन्स हमारे आंसू जो है वो कुछ भी नहीं होते, कोई मकाम नहीं रखते जब तक हम दोनों की तस्वीरें एक दूसरे के आंसुओं में ना हो। और इसको जो अगर हम इसके साथ कंपेयर करें, जो कि ज्यादातर क्रिटिक जो है वो इन दोनों लाइन को या इस लाइन को जो है आपस में करते हैं कि सो यू एंड आई आर नथिंग देन व्हेन ऑन अ डाइवर्स शोर, और हम दोनों जब अलग हों तो हम जो है एक दूसरे से कि जुदा अगर हम हो जाएं या एक दूसरे से अलग हो जाएं तो हम जो है वो कुछ भी नहीं है। सो आई विल रिपीट दीज लाइन्स वंस अगेन, एक बार रिपीट करता हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो समझ आ जाए। लेट मी पोर फोर्थ माई टीयर्स बिफोर दाई फेस वाइल आई स्टे हेयर, मुझे जो है अपने आंसू बहाने दो जब तक मैं तुम्हारे सामने जो हूँ वो खड़ा हूँ। फॉर दाई फेस कॉइन्स देम एंड दाई स्टैम्प दे बेयर, तुम्हारे जो है तुम्हारे फेस जो है मेरे आंसुओं में जो है ऐसे आए हुए हैं, ऐसे जो है वो कॉइन्ड हैं या ऐसे इम्प्रिंटेड हैं जैसे कि एक कॉइन में जो है वो बादशाह की शक्ल जो है वो इम्प्रिंटेड होती है। एंड बाय दिस मेंटाज दे आर समथिंग वर्थ, और इसी स्टैंप की वजह से, मींस बादशाह का जब स्टैंप लगता है किसी कॉइन पे, उसकी वजह से जैसे उसको वर्थ मिलता है उस कॉइन को, इस तरह तुम्हारी पिक्चर मेरे आंसुओं को जो है वो कीमत देती है। फॉर दस दे बी प्रेग्नेंट ऑफ दी, सो इसलिए जो है मेरी आंख आंसू जो हैं वो तुम्हारी याद से या तुम्हारी तस्वीर से जो है वो प्रेग्नेंट हो चुके हैं। मींस मेरी आंखों में या मेरी आंसुओं में तुम्हारी तस्वीर है। फ्रूट्स ऑफ मच ग्रीफ दे आर एम्बलम्स ऑफ मोर, कह रहे हैं कि मेरे आंसू जो हैं वो तकलीफ के, मेरी तकलीफ जो है वो बता रहे हैं कि मैं कितना ज्यादा तकलीफ में हूँ जाने की वजह से, तुम्हें छोड़ने की वजह से। व्हेन अ टीयर फॉल्स दैट दो फॉल्स विच इट बोर, जब मेरे आंसू जो है वो गिरते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे मतलब तुम जो है वो गिर रही हो, मीन्स तुम जो है मुझसे दूर जा रही हो। या मेरी हर आंसुओं में सिर्फ ये कोशिश कर रहा है कहने की कि मेरे हर आंसुओं में तुम्हारी तस्वीर मौजूद है। सो दो एंड आई आर नथिंग देन व्हेन ऑन द डाइवर्स शोर, और जब जो है हम एक दूसरे से जुदा हों तब जो है हम कुछ भी नहीं है। नाउ हेयर वी विल जस्ट इमेजिन वन थिंग और वी विल प्रेजेंट इट, कि यहाँ जो है अगर हम एक चीज पे फोकस करें, कि अगर हम वो कंपास वाली एग्जांपल जो हमने प्रीवियस पोम में जो है वो डिस्कशन की थी, कि अगर उसको हम ले आए, तो क्या कह रहा था ये जॉन डन, उसी पोम में कह रहा था कि हम दोनों जो हैं कंपास के सिरों की तरह हैं। एक जो है वो स्टे करता है, जिस तरह उसको वाइफ को कह रहा था कि आप जो हो घर पे स्टे करती हो और मैं जो हूँ घूमता हूँ और अपना काम निकालता हूँ, और आप जो हो मेरी फुल सपोर्ट करते हो, जिस तरह कंपास एक दूसरे के डिफरेंट साइड जो है एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं। सो नाउ हेयर ही इज एक्सप्लेनिंग द सेम कॉन्सेप्ट, कि हम जो है अगर अलग हो गए तो हम जो है वो
कुछ भी नहीं है। सो हमारा अलग होना जो है दैट इज इम्पॉसिबल, और ये जो है हमारा अलग होना जो है वो नहीं होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच। अभी जो है दो और स्टेंजास रहती हैं 9 लाइन की, वो जो है मैं नेक्स्ट लेक्चर में दोनों को एक साथ जो हूँ एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू सो मच।